السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ہم اہم ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کراچی کی ایک بہت اہم سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس کے اندر ایک خط لکھا گیا ہے میئر کراچی کی جانب سے، جس میں نوٹس لیتے ہوئے کلک نامی ایک ادارہ ہے جس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ ورلڈ بینک اور سندھ حکومت کے تعاون سے چلتا ہے۔ اس کے اوپر تفصیلات جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، کیونکہ اس خط کے ساتھ مختلف وہ سڑکوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کہ تھوڑی سی بارش کے بعد جو ہے وہ خستہ حال دکھائی دیتی ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر اہم تفصیلات حاصل کریں گے بیورو چیف K21 نیوز کامران زہری صاحب سے۔ انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا ہے۔ جی کامران صاحب، ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اس کے اوپر کیا چیزیں مزید سامنے آ رہی ہیں، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی، دیکھیں علی، شاید حالیہ 2 روز قبل جو برسات ہوئی تھی اس سے چند گھنٹے پہلے میئر کراچی کی جانب سے واٹر بورڈ کارپوریشن میں ایک اہم اجلاس کی سربراہی کی گئی تھی، اور اس میں میئر کراچی کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار بھی کیا گیا تھا، اور واٹر بورڈ کارپوریشن کے محکمے کے ایک ایک فرد پہ، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو، اس پہ شدید برہمی کا اظہار کرا گیا تھا اور ان کو تنبیہ کی گئی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر یہ نتیجہ نکلا، ایک نہایت پازیٹو نتیجہ نکلا کہ تیز برسات ہوئی کچھ گھنٹوں کے بعد تو ہم نے سڑکوں پر دیکھا کہ میئر کراچی کی جو جتنے بھی برہمی کے اظہار کے بعد کوئی اور ڈپارٹمنٹ سندھ کا اتنے واضح طور پہ نظر نہیں آیا اور نہ کام کرتے ہوئے نظر آیا جو کارکردگی واٹر بورڈ کارپوریشن نے دکھائی، ہر جگہ وہ نظر آئی۔ تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میئر صاحب کے لیفٹ اور رائٹ پر کچھ جو لوگ تعینات ہیں، انہوں نے شاید آج میئر صاحب کو یہ کہا ہوگا کہ واٹر بورڈ کارپوریشن پہ جو آپ کا آئیڈیا تھا برہمی والا وہ کلک کر گیا، تو کیوں نہ آپ ڈائریکٹلی طور پر ہم کلک پر ہی ایکشن کر جائیں، اور میئر صاحب آپ خط اور مراسلہ جاری کر دیں اپنے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے۔ تو دیکھیں علی، سب سے پہلے تو یہ عوام الناس کو اور بہت سارے لوگوں کا آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ جاننا سمجھنا ہوگا کہ کلک آخر ہے کیا، اور اس پر بہت میئر زبردست، کراچی بالکل۔ صاحب جو ہے اتنی شدید برہمی کا جو اظہار کر رہے ہیں تو آخر کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے یا ناظرین کو معلوم ہے کہ کلک ہوتا کیا ہے، اس کا لائن آف ایکشن کیا ہوتا ہے، اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، یہ کیوں وجود میں آیا۔ تو اس کو پھر ایک ایک کر کے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، کلک جو ہے وہ عالمی ادارہ ہے، مالیاتی ادارہ، جس کو عام الفاظوں میں ورلڈ بینک بھی کہا جاتا ہے، وہ سندھ حکومت کے ساتھ جو ہے مل کر کراچی کے انفراسٹرکچر کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے وجود میں آیا۔ اب یہ ریہیبلیٹیٹ کیسے ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا بالکل اس کا لائن آف ایکشن کو۔ دیکھیں، یہ جو ٹی ایم سیز جو اب وجود میں آ گئی ہیں 25-26 ٹاؤن، کلک کوئی بھی کام کی ٹینڈرنگ پروسیسنگ کے اندر اپنی خواہش سے نہ اس کی قیمت کا تعین کرتا ہے اور نہ وہ ورک لاتا ہے۔ آپ سمجھیے گا اس بات کو کہ مثال کے طور پہ اگر کلک کا سب سے چھوٹا ٹینڈر 10 کروڑ کا اور سب سے بڑا 50 کروڑ کا اگر اناؤنس ہونے جا رہا ہے تو وہ کلک کے ڈپارٹمنٹ سے نہیں نکلا، اس کے پیسوں کی جو تعین ہے وہ کی ہے ورلڈ بینک نے، اور یہ ورلڈ بینک کوئی امداد نہیں کر رہا، یہ آسان شرطوں پہ سود کے ساتھ یہ شہر کراچی پہ خرچ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، جن کو پھر سود سمیت کراچی والوں نے اپنے ٹیکس کی کمائی کے ساتھ واپس کرنے ہوتے ہیں۔ چنانچہ پھر یہ جو ٹی ایم سیز کے جو چیئرمین اور میونسپل کمشنرز اور جو ان کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ یہ بار بار وزیر اعلیٰ، وزیر بلدیات یا میئر کراچی یا کمشنر کراچی یا چیف سیکرٹری یا بلدیاتی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ان کی میٹنگز کے اندر یہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ آتے ہیں کہ جو فنڈز ہمیں دیے جا رہے ہیں وہ ناکافی ہیں، وہ کم ہیں، ہمارے ٹاؤن کے اندر میگا اسکیموں کی ضرورت ہے، ہمارے ٹاؤن کے اندر پختہ سڑکوں کی ضرورت ہے، اسکول کالجز کو رینوویشن کی ضرورت ہے، یا یہ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ جو ایمینٹیز ہوتی ہیں، جو صرف اور صرف ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ ماسٹر پلان اور نقشوں میں تو ہری بھلی اور آباد نظر آتی ہیں، بالکل پختہ نظر آتی ہیں، لیکن ان کا وجود نہیں ہے۔ تو ہمیں فنڈ دیے جائیں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ٹاؤن کے اندر یہ فنڈ نہیں دیا جاتا۔ پھر بعض اسکیمیں آتی ہیں جن کو آپ میگا اسکیمز کہتے ہیں، اے ڈی پیز کہتے ہیں، اسی طرح
क्लिक की स्कीम भी आती हैं जो करोड़ों 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 रुपए की होती हैं। उनको कामों को फिर एक लिस्ट बनाई जाती है। ये लिस्ट मुताल्लिका टाउन देता है कि फला टाउन के अंदर ये सड़कें हैं, ये नाले हैं, ये पार्क हैं, ये एमिनिटीज हैं या व्हाटएवर। ये बंजर बयाबान बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, इसका कोई हासिल उसूल नहीं है। खुदारा हमारा अब क्लिक के अगले प्रोग्राम के अंदर इसको शेड्यूल करें और हमें इस क्लिक के प्रोसेस टेंडरिंग प्रोसेसिंग के अंदर मेरे इस टाउन के इन कामों को किसी भी टेंडर को किसी भी ठेकेदार के हवाले करके ये काम करा दें। क्लिक का महकमा क्या करता है, जिनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, पीडी हैं आसिफ जान सिद्दीकी, जो एक सीनियर अफसर हैं, जो सिंध गवर्नमेंट के ही तैनात करदा अहम तरीन पोस्टों पर काफी अरसे से तैनात रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सेक्रेटरीज की पोस्टें हों, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट हो। अब वो क्लिक के जो है पीडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन के बैठे हुए हैं। फिर वो करते हैं क्या है कि वो एक होता है प्रोक्यूरमेंट कमेटी, ये नाम याद रखिएगा कराची वालों, आपके लिए बड़ा काम आने वाला है। फिर क्लिक के अंदर एक प्रोक्यूरमेंट कमेटी का जो है इनेकाद होता है। उस प्रोक्यूरमेंट कमेटी के अंदर क्लिक के सिर्फ चंद, याद रखिएगा अली, सिर्फ चंद नुमाइंदे होते हैं, लेकिन हर टाउन का एक इंजीनियर, चाहे वो पार्क्स का हो, एमएनडी का हो, सिविल का हो, वो एज अ फोकल पर्सन क्लिक के साथ इन्वॉल्व होकर अपने अपने टाउनों को ये काम सरंजाम देता है। और क्लिक के पास ये याद रखिएगा कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि क्लिक के अंदर अपने उनके जाती इंजीनियरिंग फर्म्स हों जो इस काम को लुक आफ्टर करें। तो क्लिक ने भी जो है बहुत सारी चीजें आउटसोर्स की भी होती हैं, तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट उनका बना है जो प्राइवेटली वर्क करता है, इंजीनियरिंग एसोसिएट, जिसको आम अल्फाजों में जो आज खत में भी लिखा गया है ईए। तो वो उसका काम क्या होता है, वो चेक इन बैलेंस करता है, कामों को देखता है, वो अपनी रिपोर्ट बनाता है और जिन जगहों पे काम होता है उन टाउन के चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नर्स उस काम को अपने इंजीनियर्स के मातहत होते हुए इंडोर्स करते हैं, यस दिस इज गुड, दिस इज राइट, और ये काम हमारा पाया तकमील पे पहुंचा। तो अब जब ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं, टेंडर प्रोसेसिंग हो जाता है। और टेंडर का भी मैं आपको बता दूं अली, टेंडर करना भी क्लिक की जिम्मेदारी नहीं है। क्लिक सिर्फ उन अखबार में एक ऐड देता है, उस ऐड के अंदर जितने भी ये जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन या कॉन्ट्रैक्टर से ताल्लुक रखते हैं वो अपनी अपनी फर्म्स को जो है उस ठेके के हिसाब से वहां पर जो है इंटेक करवाती हैं, बिड्स भरती हैं, वो बिड्स जाती हैं। और एक वर्ल्ड बैंक का बड़ा सख्त निजाम है कि ये जो इंजीनियरिंग कंपनीज जो ये क्लिक के अंदर टेंडर भर रही हैं उनका क्राइटेरिया बड़ा सख्त रखा गया है। दीगर और सिंध के महकमों के अंदर जहां टेंडरिंग प्रोसेस होती है, मिसाल के तौर पर ये जो इंजीनियरिंग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनका कम से कम 15 साल तजुर्बा होना चाहिए। कामरान ज़रीर साहब, हम एक और चीज़ भी जानना चाहेंगे कि हमें ये भी बताइएगा हमारे नाजरीन को कि अब तक क्लिक की जानिब से कितने रुपयों का काम जो है वो हो चुका है, और थोड़ा सा ये भी हमारे नाजरीन यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे इतने इम्पोर्टेंट इदारा जिसकी ज़रूरत, जिसका काम है कि वो तरक्याती काम करवाए, उसको बने हुए कितने साल हो चुके हैं? देखें अली, पहले वो बात कंप्लीट होगी तो आपका सवाल ऑटोमेटिकली उसके अंदर खुद आ जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि जो टेंडरिंग प्रोसेसिंग होती है ना, जो अमल है वो क्लिक के हाथ में नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक के हाथ में है। जब क्लिक का इदारा इन तमाम कंपनीज को, इन कॉन्ट्रैक्टर्स को एक बिड के साथ वहां भेज देती है तो वर्ल्ड बैंक का इदारा उसको बाकायदा चेक करता है कि हाँ इस ठेकेदार पे, इस कॉन्ट्रैक्टर फर्म पे कोई लीगल केस, कोई डिफॉल्ट पना, कोई इसके तजुर्बे में कमी, कोई इसके बाद पैसों में कमी, या इसके अंदर नाअहली की इंतहा तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो हमने देखा है कि बाज जगहों पर ये टेंडरी जो है ये कैंसिल हो जाते हैं या वो कंपनी को हटाकर जो है दोबारा इन टेंडर प्रोसेसिंग, ये एक बड़ा शफाफ तरीन एक निजाम है। अब आपका सवाल कि इसको बने हुए कितना टाइम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। क्लिक का इदारा कमोबेश 4 साल से इधर कराची के अंदर काम कर रहा है और इसके अंदर इस दौरान जो क्लिक ने
करोड़ों अरबों रुपए के टेंडर कर दिए हैं। अब आपका जो अहम तरीन सवाल होना चाहिए अली, कि मेयर कराची ने जो ये आज क्लिक पर बरहमी का इजहार कर दिया कि ये सड़कें टूट जाती हैं और ये ऐसा हो जाती हैं, तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जब मैंने आपको वाज़े तौर पर ये कह दिया कि क्लिक का इन सब चीजों से मामलात नहीं होते, ये तो आपके पास काम करने वाले जो टीएमसीज हैं उनके इंजीनियर्स की जिम्मेदारी बनती है कि अगर दाल में कुछ काला है और अगर इसकी तरक्कियाती कामों के अंदर मिलावट है तो वो पकड़े, क्लिक नहीं पकड़ेगा, क्योंकि क्लिक अथॉरिटी नहीं है, क्लिक तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल मैन का काम कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तीसरी बात पे आ जाएं, क्या मेयर कराची जो आज मेयर कराची है 2 साल कबल वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे अली? क्या उस एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दौर के अंदर क्या मुर्तजा वहाब साहब के महकमे केएमसी ने कोई मेगा प्रोजेक्ट किया होगा, कोई सड़कें बनाई होंगी, कोई पार्क बनाए होंगे, कोई लाइटिंग का काम किया होगा? तो 2 साल के अंदर अगर सहाफी निशानदेही करने पे आ जाए तो ऐसा ना हो जाए कि फिर बात बुरी सी लग जाए। तो क्या वो अपनी जगह पर स्टिल मौजूद हैं? क्या उन चीजों का मुकाबला जो है दुनिया के जो है प्रोजेक्ट्स के हवाले से कर सकते हैं कि हाँ ये केएमसी ने रोड बनाई थी, आओ इसका मुकाबला कर ले यूरोप का कोई और मुल्क? या नाला सफाई अगर आप बात कर लें, ये जो कैडर ऑफिसर आसिफ जान सिद्दीकी जो एज अ पीडी काम कर रहे हैं, ये तो जस्ट एक कैडर ऑफिसर है जो सिंध हुकूमत ने कामरान ज़हीर साहब, एक आम आदमी तो ये सवाल कर रहा है कि जनाब हमारे टैक्सेस से ये निज़ाम चल रहा है, हमारे टैक्सेस से तमाम चीज़ें हो रही हैं, हमारे नाम पर बजट्स भी लिए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद फिर क्या वजह है कि सड़कें जो हैं वो उतनी पायदार नहीं होती कि चंद मिनटों की बारिश उनको बहा के ले जाती है? अली बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, थोड़ा सा तसल्ली से करना पड़ेगा। सिंध के बहुत से बल्दियाती इदारों के अंदर जहां जहां पर ये टेंडरिंग प्रोसेसिंग होती है अवाम की फलाह बहबूद को बहाल करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए, चाहे पार्क हो, चाहे सड़कें हों, चाहे वो पुलों का निज़ाम हो, चाहे नाले की सफाई हो, तो फिर ये कहीं ना कहीं ये आवाज़ें ज़रूर आती हैं कि बगैर ठेकेदार भी जो है बगैर कमीशन दिए इन जो है टेंडर प्रोसेसिंग के अंदर कामयाब नहीं होते। और ये ओपन सीक्रेट बात है अली, अगर मेरी बात पर अगर किसी को ताज्जुब हो रहा हो और आज उसने पहली बार सुनी हो, तो किसी भी ठेकेदार एसोसिएशन के बंदे को कोई भी तहकीकाती इदारा बुला ले अपने पास और उससे अपने अंदाज में पूछ ले कि कितने % कमीशन चलता है। मिसाल के तौर पर अगर 1 करोड़ रुपए का ठेका है तो उसके अंदर 15 से 20% अगर वो कमीशन देगा और उसके बाद उसके हाथ में 80 लाख रुपए बचेंगे, अगर 20 लाख रुपए वो बांट देगा, उस 80 लाख में उसने कमाना भी है और लगाना भी है। तो फिर बिल क्लियर करने के टाइम पर जब आता है तो दोबारा यही 12 से 15% देना पड़ता है। तो जो 1 करोड़ का काम तो उसने नहीं किया ना, फिर काम तो उसने 20-25 लाख रुपए का किया। तो 20-25 लाख रुपए के काम के अंदर क्या तवक्को रखी जाएगी अली? मगर फिर कामरान ज़हीर साहब, फिर सवाल ये शहरी करेंगे ना कि हम टैक्स से एंटी करप्शन और दीगर इदारे तहकीकाती चला रहे हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए इस तरह के मामलात के अंदर? क्योंकि फिर शहरियों का एक अहम मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। कराची के जो रहने वाले हैं, आप भी बड़े करीब से चीज़ों को दिखा रहे होते हैं, कराची के मामलात को, बड़े ही अहम मामलात को उठा भी रहे होते हैं। तो कामरान ज़हीर साहब, फिर एक मामला तो रहेगा ना कि फिर ये कौन सही करेगा, किस तरह सही होगी? ये शहरियों के सवाल उठने वाले, इनके जवाब फिर किस तरह लिए जाएंगे, कौन लेगा और कौन इनको जवाब देगा, कौन मुतमईन करेगा और इनके मसाइल फिर कैसे हल होंगे? देखिए, हम तो बारहा अपने चैनल के तवज्जुह से और सोशल मीडिया पे ये पैगाम देते हैं कि 1 पॉइंट एजेंडा पे आना पड़ेगा। जिस तरह दीगर ममालिक की मिसाल देके कराची वाले सोशल मीडिया पे चीजें वायरल करते हैं कि बारिश हो गई, कराची डूब गया, फलानी जगह आबाद है, तो 1 पॉइंट एजेंडा उनका क्या है कि मेयर के पास तमाम बल्दियाती इदारों के जो है इख्तियारात होते हैं। लेकिन यहाँ पर अली एक और बहुत बड़ा मसला है कि मेयर कराची सिर्फ ओन करता है केएमसी को या वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन को बस, लेकिन जो दीगर बल्दियाती इदारे हैं जिसमें 26 टाउन हो गए या सिंध भर के टाउन म्यूनिसिपल कमेटीज हो गई या एमडीए हो गया, एलडीए हो गया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, केडीए हो गया और भी दीगर जो इदारे हैं, वो तो वजीर बल्दियात के डोमेन में आता है और वजीर बल्दियात का अलग डोमेन काम करता है और मेयर कराची का अलग डोमेन काम करता है। मेयर कराची वजीर बल्दियात के डोमेन में नहीं आ सकते और वजीर बल्दियात मेयर कराची के डोमेन में नहीं आते। इस हवाले से भी आगाह करते हैं ना कि कौन कौन सी डोमेन किसकी है, क्योंकि आम शारा है केएमसी कहती है जी हमारे पास है, फिर अंदरूनी जो इलाके हैं उसके ऊपर भी एक डिबेट का हिस्सा तो रहता है। कामरान साहब बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं, नाजरीन बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी से सुन रहे होंगे यकीनी तौर पे। थोड़ा सा इस हवाले से भी आगाह करते हैं किसके पास क्या डोमेन है।
देखिए, मेयर कराची के पास बल्दिया उज़्मा कराची का 100% जितनी भी सड़कें मेन शाहराएं 200 फीट की आती हैं, जो आपको किसी के जरिए भी पता चल सकते हैं। इसके अंदर शाहराए फैसल का कुछ हिस्सा है और कंटोनमेंट इदारे इससे मुस्तस्ना होते हैं, पीडब्ल्यूडी रेलवे के इदारे इसके अंदर मुस्तस्ना होते हैं। ये मेयर कराची के हक में जो इख्तियारात में नहीं आते। जितनी भी टाउन म्यूनिसिपल कमेटीज, कॉरपोरेशन, टीएमसीज या जितने भी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं, ये मेयर कराची के डोमेन में नहीं आते। इनके डेवलपमेंट फंड ये वजीर बल्दियात की तरफ से आते हैं। जो अंदरूनी सड़कें होती हैं, अंदरूनी मामलात होते हैं, वो सारे के सारे टाउन के वजीर बल्दियात के डोमेन में आते हैं। मेयर कराची का काम सिर्फ और सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची के अंदर आने वाले तमाम मामलात को देखना है, लेकिन ये परसेप्शन गलत दिया जाता है कि बहुत सारे। इसी तरह अगर ये मेयर कराची ने आज अगर क्लिक को ये खत लिख दिया, तो फिर मेयर कराची साहब से बोलें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी शहर में होने वाली लाकानूनियत पे खत लिख दें, वो लिख सकते हैं। केडीए को एक खत लिख दें, क्या वो लिख सकते हैं? एमडीए को लिख दें, क्या वो लिख सकते हैं? एलडीए को लिख दें, क्या वो लिख सकते हैं? दीगर इदारों में से और भी अहम तरीन इदारे हैं, क्या वो लिख सकते हैं? वो तो मेयर है ना, वो लिख सकते होंगे, लेकिन अगर कानूनी टेक्निकली तौर पे देखें जब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ठेकेदार भी जो है, मैं आपको एक अहम तरीन और अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर इख्तिताम भी करूंगा। देखें अली, ये टेंडर प्रोसेसिंग के अंदर भी बहुत मामलात होते हैं, अफसरान भी बहुत जगह पे मिले हुए होते हैं। वो जो भी अगर कोई भी टेंडर अगर मिसाल के तौर पे 10 करोड़ का है, तो अगर वो 30% बिलो पे कर देते हैं या 40-50%, 100% बिलो पर ठेका लेने की गर्ज से कर देते हैं, तो पता है वो कितने का हो जाता है? 1 रुपए की सीमेंट की बोरी, 8 आने की ईंट, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। काम शुरू होते ही ये ठेकेदार बंद भी कर देते हैं और फिर डिमांड करते हैं कि इस जो टेंडर को रिवाइज किया जाए, क्योंकि आपस की सेटिंग होती है, बाद में वो रिवाइज होकर 10 करोड़ का काम 50 करोड़ रुपए पर चला जाता है। इसी तरह और भी मामला हैं। लेकिन अगर हम क्लिक की बात करें तो ऐसा अभी तक कोई वर्ल्ड बैंक के इस काम करने वाले इदारे को ऐसा कोई एलिगेशन हमने देखा नहीं है। हाँ, अगर कैडर ऑफिसर्स के ऊपर अगर ये मेरी लास्ट मामलात हैं, ये सुनिएगा बात, अगर कैडर ऑफिसर्स को नाअहल समझा जा रहे हैं, तो फिर आप अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी साहब से भी पूछें कि नाला सफाई के अंदर किस तरह उन्होंने, जिस तरह जराए बता रहे हैं, अपनी मनपसंद कंपनियों को, ठेकेदारों को करोड़ों अरबों रुपए के नाले साफ करने के लिए जो टेंडर दे दिए, वो किस पैराए में दे दिए। या ये कह लें कि अगर तहकीकाती इदारे, सिर्फ नैब और एंटी करप्शन नहीं है अली, याद रखिएगा, ये अफसरान जानते हैं, हाँ, बिल्कुल इस सही कह रहे मुल्क हैं। का दिफाई एक अहम तरीन हसास इदारा भी अब इसको अपनी गहरी नजर से देख रहा है, और एक ना एक दिन और बहुत जल्द अब ये लोग बहुत सारे मामलात जो है ना शिकंजे में आने वाले हैं और कराची वालों को रिलीफ मिलने वाला है। जी बहुत शुक्रिया। कामरान ज़हरी, ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़, हमसे मुखातिब थे और एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से नाज़रीन आपको आगाह कर रहे थे। सवाल बुनियादी यही है कि इस शहर से गुजरने वाले वो तमाम मुसाफिर, उनके जहनों में सिर्फ एक सवाल उठता है कि जी, जब टीवी पे बैठ कर ये बात की जाती है कि ये 70% रेवेन्यू देने वाला शहर है, ये चलता है तो पाकिस्तान चलता है, ये तमाम बातें करने के बाद उनकी गली मोहल्ले और सड़कें टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं और उसके ऊपर ये कागजी मामला चल रहे होते हैं। शहरी सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको पायदार पुख्ता सड़कें कम से कम मुहैया कर दी जाए, जो कि उन्हीं के टैक्सेस के बदौलत ही उनसे उन ठेकेदारों ने जो है वो बनानी है। मगर खुदारा इस चीज़ को देखें, खुदारा इस चीज़ को देखें, लोग अजियत का शिकार हैं, लोग परेशानी का शिकार है। एक अहम डेवलपमेंट हुई थी कराची शहर के अंदर, जिसको हमने अपने प्रोग्राम में हिस्सा बनाया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुख्तलिफ इशूज़ भी हैं कराची के जिसको हम डिस्कस करेंगे नाजरीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का।